I'm Captain Dr. Dinisha Bhardwaj Singh. 1993 में आपने ज्वाइन करा, राइट? आज की डेट में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसएसबी, Service selection. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो अभी तो एसएसबी के थ्रू आई गेस प्रोसेस होता है। क्या आपके टाइम पे भी सेम यही प्रोसेस था या कुछ? Exactly. So, one has to go through, one had to go through that time also, through the rigor of SSB. The selection process, the training module, everything was same. Only the thing was that women were inducted. What was the reason कि why you didn't pursue army thing and up education में? It was not me who decided to leave army and select any alternate field. Of course, in my case, education. जो हम हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हम हैं, अगर हम वो ही नहीं रहेंगे तो क्या आपको लगता है वो डेवलपमेंट आ पाएगी? विज्ञान वो नहीं है जो आज हमें दिखता है। जैसे कि विज्ञान वो नहीं था जो 20-30 साल पहले दिखता था। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो ये कहा जाता था एक फोन आने वाला है जिसमें आप कहीं भी चलते फिरते बात कर लोगे। तो एक बड़ी अजीब सी बात लगती थी। हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं और जितने गैजेट्स और गिज्मो की बात करते हैं। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम की बात है, मेरे को लगता है 90% इज पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, राइटफुली माइलस्टोन्स अचीव करता हुआ देखते हैं बच्चे को, तो वो हमेशा संस्था के साथ खड़े ही होंगे, वो पीछे नहीं होंगे कभी भी। एम आई राइट और रॉन्ग इन दिस केस? जो आपने कहा बिल्कुल 100% सही कहा। इसमें मैं 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। जो शिक्षण संस्थान ने आपके बच्चे को देना है, उसके लिए आप भेज रहे हो क्योंकि वो आप नहीं दे सकते, नंबर 1। जो वैल्यूज़ शिक्षण संस्थान ने आपके बच्चे को देने हैं, जो आप भी दे सकते हो, नहीं, आपको जीना है उसको। क्योंकि वो किताब से पढ़ के नहीं सीखेगा, वो आपको देख के सीखेगा। किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं। एक और बात है जो इस दूरी को और बढ़ाती है, वो ये है कि गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। टुडे वी आर विद डॉक्टर दानिशा मैम। शी इज आर्मी पर्सन। बाकी एज पर आवर रिचुअल हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमारे गेस्ट ही देते हैं। सो ओवर टू यू मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Namaste everyone. I'm Captain Dr. Dinisha Bhardwaj Singh. Half introduction has been given by Mr. Bansal, but I would add to it. Started my career as an army officer. Served for 10 years with Indian Army. Had privilege of joining Indian Army when Army started inducting women. And then after 10 years switched to core education. Rest we'll talk and no more. Thank you. अमेजिंग मैम। तो आपने भी बोला कि विमेन के कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ स्टार्ट हो रहा था, प्लीज वो थोड़ा सा बताइए। Army had been male-dominated field during British time and even after when Army became Indian Army. Yes, there were ladies into medical field. They were doctors and nurses, but there were no lady officers directly into military work and operations. So Army started inducting women, and I feel privileged and lucky to be the part of first batch when Army inducted women into direct operational and services roles. ये हम किस ईयर की बात कर रहे हैं? This was 1993. 1993। ओके, समवेयर अराउंड 30 years, Almost. 32। Yes, almost. अमेजिंग। तो 32 years बैक यू वर द वन जो आर्मी के विमेन कैडर में जो स्टार्टिंग में। अमेजिंग, ग्रेट। तो आपने कोर एजुकेशन अभी बताया कि आफ्टर दिस आर्मी थिंग आप एजुकेशन में चले गए। व्हाट वाज द रीजन कि व्हाई यू डिडंट परस्यू आर्मी थिंग एंड आप एजुकेशन में आए? क्या रहा? I wish my wish would have been fulfilled. It was not me who decided to leave army and
select any alternate field. Of course, in my case, education. When army started inducting women, it was great privilege. As I said, I am one of the privileged first few batches where lady officers were inducted into Indian Army. And it was initially for 5 years. It was extended to 5 more years. And subsequently, Army couldn't decide what to do with this entry. So after 10 years, there was nothing for the first few batches. And then subsequently, Army decided after we left that it could be continued for 14 years. And Okay. then now it is becoming permanent commissioning in certain streams. So it was not that I decided, there was no option for anybody who were privileged lot that time when we joined to continue in Indian Army. That's how I chose the path B. तो अभी जो ये अग्निवीर वाली स्कीम है, समहाउ कुछ उससे कनेक्टेड है क्या आपका थॉट प्रोसेस या? वेल अग्निवीर वाली स्कीम जो है, दिस इज टू इंडक्ट young men and women into ranks. They are not into officers entry. ओके. They will be soldiers, they will be trained, and they will serve for 4 years. But and purpose of this Agniveer is different. But purpose for inducting women was to induct women in Indian Army. Okay. But probably the policies could have been more firm and well defined right in the beginning, which probably were not. ओके, गॉट इट. तो अभी आपने बताया कि 1993 में आपने ज्वाइन करा, राइट? आज की डेट में देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसएसबी, राइट? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, व्हाटएवर, क्या इसका वो फुल फॉर्म क्या है? Service selection board. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो अभी तो एसएसबी के थ्रू आई गेस प्रोसेस होता है. क्या आपके टाइम पे भी सेम यही प्रोसेस था या कुछ? Exactly, same process tha, the screening and the complete process of SSB. So one had to go through that time also through the rigor of SSB. The selection process, the training module, everything was same. Only the thing was that women were inducted. ओके, मतलब मेजरली पेट्रियार्कल से वो विमेन Women induction was the new thing. Rest Okay. everything was same. ओके, अमेजिंग. तो जब आपने कहा स्क्रीनिंग एंड ऑल, तो आर्मी को सुन के मेरे को जो एक चीज़ एक्साइट करती है, दैट इज OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. तो हुआ क्या, मैंने अपनी किताब लिखी एक. तो क्या हुआ कि मैंने 300 दिन बच्चों को पढ़ाया, स्टडी करा, एनालाइज करा कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है. तो जो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी दैट इज कम्युनिकेशन. तो जब आंसर फ्रेमिंग की बात आती है या कॉन्सेप्ट को समझने की बात आती है, तो देर इज मेजर थिंग कॉल्ड कम्युनिकेशन जो मुझे लगा. तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए मैंने एक वर्कबुक टाइप बुक लिखी. तो मुझे बहुत मज़ा आया कि हाँ, यस. और एक चीज़ जो मैंने सीखी, जो किताब आप लिखना चाहते हैं वो आप बन जाइए पहले. तो मैं बना वो चीज़, मुझे बहुत मज़ा आया. Very well said. राइट. तो उसके बाद फिर मेरा जो अगला मन है वो है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, क्योंकि मेरे को 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक ऑफिसर, एक आर्मी पर्सन. व्हाई? क्योंकि इसमें फेलियर नहीं है लाइफ में. हो सकता है आप किसी एक मोमेंट पे फेल कर जाएं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एंड में आपकी सक्सेस है. तो वही OLQs में आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा, और इस सेंस में जानना चाहूँगा कि बच्चा क्या, कहाँ पे और कैसे उसको अपनी एप्लीकेशन में लगाएं एजुकेशन के साथ. मैं आपके दोनों क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और एक जो आपने पॉइंट पुट अक्रॉस किया, आई वुड लाइक टू आंसर बोथ. You talked about military life, you talked about failure. I'll address it subsequently. If I miss, do remind me. This Sure, is sure. very important thing which I have spoken in 2 of the TEDx also. So, answering to your OLQs, officer-like qualities. You said communication. It is much beyond communication also. When we talk about OLQs, it is, you must be seeing this in army advertisement also. Do you have it in you? Though we try to define that what is that which we need to have in us to be an officer from Indian Army. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब इसको हम हिंदी में रखते Oh, हैं. sure. इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जो रियल आर्मी को समझता है ना, वो आज भी गांव देहात का बंदा ज़्यादा इंस्पायर है. जो प्रीमियम सेगमेंट है वो आज की डेट में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आपके कम. साथ हूँ. सो हम हिंदी में बात करते जी हैं. जी, थैंक यू. तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं, तो आपने कम्युनिकेशन कहा, ये मैं अगर इसको लॉजिकली डिवाइड करना चाहूँ तो हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जी. फर्स्ट पार्ट है कॉग्निटिव.
ओके। your anything to do with your brain, anything to do with your analytical power, critical thinking, crisis management, uh, and partially communication. Communication would come here also, communication would come in other two parts also. Then comes your social wisdom, how good you are, how empathetic you are, how much you understand your surroundings, how much quality, how many qualities you have, and how do you use these qualities to take the crowd with you. This will come in leadership also, which is the next point. And next comes is leadership. Leadership takes care of everything. Communication also falls in all the segments. Overall, it is leadership. Leadership is, first of all, as you said, and very well said, that I want to be the book I write. So you want to be what you want to speak. Hmm. You should be what you want to communicate to others. For example, why we look into officer like qualities? Because being an officer, what is your task? Being an officer from military, what is your ultimate task? Hmm. Your ultimate task is to lead your men, lead your boys into war Hmm. or into warlike situation. So you cannot lead your men. What is the appraisal for them when you're leading them? It's life. You come back alive is the appraisal. Hmm. So when you lead somebody with an appraisal that you come back alive, you got to have that strong in you. Hmm. And for that, these officer like qualities build you. Hmm. You be what you want to see in others. And then you stand. You just stand and people follow you. That is what four officer like qualities are looked into an officer, irrespective, male, female. And these qualities are a must. And ultimately, of course, we are trying to divide in three categories. But then I would again address and say, do you have it in you? Be honest. If you don't have it in you, polish. Hmm. Also, like quality is not that having everything in you, also understanding what you don't have it in you, and then accepting and nurturing that is important. Hmm. So, if we combine these, and ultimately, when you said communication, communication would be for everything. Like, how do you motivate? How do you communicate even something which is not so positive to be received? How do you express your happiness and annoyance as well in the same temperament? How do you act, not react? How do you stand strong even in conditions of uh, difficulty, in all levels of जैसे difficulty? इसको सरल भाषा में कहें तो सही इंसान की पहचान तभी होती है जब वो डिफिकल्ट टाइम में कैसे डिफिकल्ट बिहेव टाइम्स में करे। होता है। सही इंसान की पहचान तभी होती है जब वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरता है। कितना मजबूत वो इंसान उस वक्त होता है जब वो मुश्किल समय में होता है। इसीलिए कहावत भी है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी हैं, ये किसी पर्पस से बनी हैं। और इसी पर्पस को आगे लेके चलते हुए हम बात करते रहेंगे इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे। और हम कोशिश अगर ये करते हैं कि हमें मिलिट्री में जाना है और हमें ये क्वालिटीज़ अपनानी है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं किताबों से, हम ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं। आई डोंट से कि ट्रेनिंग से नहीं आप अपने आप को पॉलिश कर सकते, लेकिन आप अपने आप को पहले अनलर्न करो, जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, जो इस दिशा में ले जाने से आपको कहीं पीछे खींचते हैं, उनको पहले क्लीन करो और अपने अंदर वो लेके आ जाओ, जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो। अनलर्न से एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई। मैं आपके लिए आज एक छोटा-सा वो लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। तो हमने क्या करा है कि रीलर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन 21st सेंचुरी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है, राइट? तो रीलर्निंग वही कर सकेगा जो अनलर्न करेगा। एब्सोल्युटली। तो एक ग्लास है, ये बॉटल है, इसमें पानी है, मुझे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डालनी है, तो मुझे इसको पहले खाली करना होगा ना? राइट, वही है राइट, राइट, अनलर्निंग। राइट, राइट। क्योंकि कैपेसिटी हमारी है, हम उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हुँ। लेकिन फिर भी एक लिमिट होगी ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जिस रास्ते पे हम जाना चाहते हैं और जो हमें नहीं चाहिए, उनको या तो छोटा कर दो या कम कर दो या हटा दो। हुँ। वो हट के कहीं जाएँगी नहीं, लेकिन किसी दूसरी जगह पर फिक्स हो जाएँगी सो दैट you can get things, if I say here, also like qualities. अमेज़िंग।
तो थोड़ा-सा फिर से एक बार बैक चलते हैं 93 के अराउंड। आप स्क्रीनिंग की जब बात कर रहे थे, आपको वो याद है जब आपका पीडीटी हुआ होगा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट? आपको कुछ याद है, मतलब कोई ग्लिम्प्स या कोई बहुत आपने बहुत लास्ट कुछ याद है मुझे। थोड़ा-सा, आप मतलब कोई एक इंटरेस्टिंग या फिर कोई ऐसा जो लाइवली एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, वो आई वांट टू लिसन पिक्चर एक्सप्रेशन के ऊपर। इफ इट इज़ सो, हाँ, क्योंकि मुझे 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 उतना ही बहुत पता है। कुछ याद है। जी। जब हम ये एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, पिक्चर एक्सप्रेशन की, जो कुछ समय के लिए डिस्प्ले होता है और आपको कहानी हुँ, लिखनी है, हुँ, तो आई हैड बीन राइटिंग स्टोरीज़, तो मुझे वहाँ डिफ़िकल्टी नहीं आई। हुँ, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, लोग जनरली इस बात को विश्वास नहीं करते, कि क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, उस वक़्त भी लेते थे, लेडी ऑफ़िसर्स ने ली कि नहीं मुझे नहीं पता। पर मेरे साथ ऐसा था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम थे और मेरे पास जब ये कॉल लेटर आया तो मैंने एग्ज़ाम डेट से क्लैश कर रहा था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। हालाँकि मेरी इच्छा थी, मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में कहा है, एक उड़ान सीरियल को देख के मेरी इच्छा थी कि मुझे यूनिफ़ॉर्म पहननी है। उस वक़्त मिलिट्री सर्विस नहीं थी लड़कियों के लिए, तो मेरी इच्छा थी कि मैं पुलिस यूनिफ़ॉर्म पहनूँ। ये आया, मैंने भरा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे रास्ते के लिए मुझे एक इनपुट मिला। लेकिन मुझे साइड रखना पड़ा क्योंकि जो चीज़ आपके सामने कॉन्क्रीट है, आप उसको अपनाते हैं। तो लेकिन फिर मुझे मेरे एक ब्रदर थे, उन्होंने आके बताया कि इसका एब्सेंटी बैच भी होता है, आप अच्छा। उसको भरो। आजकल शायद नहीं होता, उस वक़्त होता था। तो मैंने एब्सेंटी बैच का कॉल भरा और मेरा लास्ट बैच था एसएसबी का, इलाहाबाद 18 एसएसबी इलाहाबाद। तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा 14th अगस्त को एग्ज़ाम खत्म हुआ और उसी दिन मेरी शाम की ट्रेन थी और 15 तारीख को मैं पहुँच गई वहाँ पर, 16 को हमें जॉइन करना था। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ किस चीज़ के लिए जा रही हूँ। बस मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे और मैं खुद थी। और जब आती है सवाल जो आपने किया उसके ऊपर, अगर हम उसकी बात करें तो, जो मेरे अंदर फायर थी ना, वो मेरी हर कहानी में निकली। हुँ, मेरे अंदर उस वक़्त मेरी लाइफ़ का कुछ स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। जी। मेरे फादर डॉक्टर थे, बहुत अच्छा समय था जब तक हम 10th क्लास में थे। 4 क्लिनिक्स हुआ करते थे, बहुत अच्छा समय था। बीइंग अ डॉक्टर वन कैन अंडरस्टैंड कि कैसी लाइफ़ रही होगी। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और सब कुछ धीरे-धीरे खत्म होता जाता है। और जब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर आई थी, तो ये था कि किस दिन वापस आऊँ और मैं उन्हें ना देखूँ, ऐसा स्थिति था। तो जब और एक फायर था कि मुझे कुछ करना है। हुँ, अपने परिवार में बड़ा होने के नाते, बड़ी बेटी, 2 बेटियाँ थीं। मुझे कुछ करना है, तो एक फायर कहानी, जो भी कहानी दिखती थी, जैसे कोई रो रहा है, तो मुझे दिखता था कि आज ये रो रहा है, मैं मेरा स्टोरी का अंत ये होता था कि ये अब जीत के आया और इसने ये एन्श्योर किया कि आने वाले समय में इसके आस-पास कोई रोए ना, ये इतना काबिल बन जाए। हुँ, कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, पसीने-पसीने हो रहा है, तो आई हैड रिटन अ स्टोरी कि ये इसका स्ट्रगल टाइम था, इसने किया, इसने ये किया और बन के ये कुछ काबिल बन के आ गया। नॉट नेसेसरी आर्मी ऑफिसर, मैंने अलग-अलग कहानियों में अलग-अलग परिवेश का की विवेचना की है। पर हर कहानी मेरी ऐसे खत्म होती थी जैसे कि एक आदमी ने स्ट्रगल देखा, वो अचीव करके आया और वो अचीव करके ये नहीं कि खुद के लिए सेलिब्रेट कर रहा है, वो अचीव करके आगे आने वाले टाइम में अपने आस-पास की सारी चीज़ों को परिवर्तित कर रहा एक है। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब वो व्यक्ति या वो जो भी प्रोटैगनिस्ट होता था उस कहानी का, हुँ, वो तैयार होता था कि जीत के आना है, आग है अंदर और वापस आके सोसाइटी को देना है। मेरी सारी कहानियाँ तो ऐसी थी, फिर वही चीज़ जो आप में थी, वो ही जो मेरे रेप्लिकेट अंदर हुआ। थी। एक्चुअली कहानी होती क्या है और इस कहानी लिखने का पर्पस भी यही है कि आप क्या हैं, आप और टाइम कम क्यों होता है? हुँ, इसीलिए कि आप क्या हैं, आपका असली 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 चेहरा सही। चेहरा उस हुँ, कहानी में आए और एसएसबी यही टेस्ट करता है। एसएसबी में आपका ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, आपका जीटीओ है, आपका इंटरव्यू है, ये और साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग आपकी पर्सनैलिटी को अलग-अलग एंगल से टेस्ट करते हैं। हुँ, और अगर आप इन सब ने आपकी पर्सनैलिटी को ये कहा कि मैंने भी यही सेम देखा, आपने भी सेम देखा, इन्होंने भी सेम देखा, तो आप क्लियर हैं। हुँ, 2 ने सेम देखा, तीसरे ने नहीं देखा, तो हम डिस्कस करेंगे, जो हुँ, कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट में। और अगर 50-50 है तो आपसे सवाल भी किया जा सकता है और अगर ज़्यादा लोगों ने मना किया है, एक आदमी कह रहा है, हुँ, हुँ, तो शायद आप फिर नहीं थ्रू होंगे उस हुँ। वक़्त। अभी एक कॉन्टेक्स्ट मेरे दिमाग में आया। मेरे मेंटर हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं जब मैं हायरिंग कर रहा हूँ, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, तो कहते हैं जब मैं हायरिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं जनरली सीवीज़ नहीं देखता। तो मैं क्या करता हूँ कि उनको बाहर ले जाता हूँ,
कभी बैडमिंटन खेला, उनको ना एक ऐसी सिचुएशन में डालता हूँ जिससे उनका ट्रू नेचर पता लगे। तो मतलब मेरे साथ भी जब वॉक कर रहे हैं तो क्या करते हैं, तेज चलेंगे, एकदम से टर्न आउट हो जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर टर्न आउट हो जाएंगे। तो एक आर्मी वाला इससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जो ट्रू नेचर है वो मतलब मुश्किल समय भी पहचान कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ वाली बिल्कुल चीज। सही बात है। राइट। और जितना कम टाइम होगा उतना आपको सोचने को कम कम मिलेगा, तो मिलेगा। आपकी असली पर्सनैलिटी सामने आएगी। राइट। आपने अभी एक बात बोली कि आप अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना चाहते थे, कुछ ऐसा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, डू यू बिलीव इन दैट, बीइंग अ आर्मी पर्सन? वेरी, वेरी स्ट्रांगली, नॉट बीइंग ओके। एन आर्मी पर्सन ओनली, बट बीइंग अ ह्यूमन। मैं आपको मेरे पास शब्द शायद नहीं है, इसीलिए मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो आई गेट इनटू दैट फायर मोड अगेन। अभी मैंने अ, एक्सपीरियंस करा एकदम से, व्हेन यू वर बिकॉज़ टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी, नो, आई वाज वो सीइंग दैट फायर। वो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन एक हिंदी फ़िल्म का डायलॉग है, मैं उसे हिंदी फ़िल्म तक नहीं जोड़ती हूँ, ज़िंदगी से जोड़ती हूँ, जी। कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो सारी कायनात हम्म। आपको उसको संभव करने के लिए आपके साथ मदद खड़ी हो करती है। जाती है। और ये खाली डायलॉग नहीं है, ये मैंने जिया है। आप कोशिश करो, आप भी इसको जी के देखोगे। लेकिन उसके लिए 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर अंदर फायर है, तो वो आग इतनी देर तक जले कि वो बलून हवा में जाए। हम्म। उसके लिए फिर आपको कितना भी कुर्बानी करनी पड़े, अपने आराम की, अपने स्टेटस की, किसी भी चीज़ की। पर हम्म। आप में से अपने से जुड़ी हुई कुर्बानी आप करें, अपने ऊपर जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं करें, आपकी मैनिफेस्टेशन अवश्य पूरी होगी। मेरी एक और मैनिफेस्टेशन है, जिस दिन पूरी होगी, यू विल आपके पॉडकास्ट पर शेयर। वापस आऊँगी। अमेजिंग। तो अभी कल मैं एक कथा सुन रहा था, मुझे बहुत मजा आता है। ये इंद्रेश कुमार जी, वो बड़े प्यारे तरीके से कृष्ण जी की कथा सुनाते हैं। उसमें मेरे को एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली, आपसे कनेक्टेड है। कहते, अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो तीन चीजें क्या लगती है, कहते पहला तो विश्वास, दूसरा कहते भक्ति, तीसरा समर्पण। इज इट राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने शब्दों में पिरो दिया, मैं भावनाओं में इसका हम्म। आंसर दे पा रही थी। बिल्कुल, विश्वास, क्या-क्या बोला आपने? विश्वास, विश्वास, भक्ति, भक्ति, समर्पण। समर्पण। विश्वास तो पहले आप विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। भक्ति मतलब डेडिकेशन, हम्म। और समर्पण मतलब छोड़ दो अपने आप को बहते पानी में, हम्म। आप डूबोगे नहीं। गो इतना विद द फ्लो। विश्वास है, आप हमेशा किनारे पे आओगे और 4 लोगों को बचा के भी आओगे। हम्म। देन अगेन सेम थिंग, चार लोगों को बचा के आओगे। ये दैट्स योर पीडीटी। दैट इज़ माय फायर, राइट। और ये आग अमेजिंग। मेरे अंदर बचपन से जल रही है। अमेजिंग। तो ये वाली फायर जो है, नाउ यू आर अ प्रिंसिपल सीईओ, आप थोड़ा सा और बेटर बताएंगे। तो ये वाली फायर को आप कैसे कंटिन्यू रख रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स? आई एम पहले पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे जी, चाहूंगा। जी, अभी हमने आर्मी वाला एस्पेक्ट डिस्कस करा। जी। नाउ आई वांट यू टू टेल अस कि कैसे आपने एजुकेशन में एंट्री ली, और अब यहाँ तक फिर आप सीईओ आर्मी पर्सन कैसे कनेक्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल के तौर पे? Uh, you know, when I joined Army, first thing, my corps was Army Educational Corps, and it used to call when in field area staff officer intelligence and education. तो एजुकेशन चल रहा था मेरे साथ, लेकिन कोई कोर एजुकेशन जैसा हिसाब किताब नहीं था। अ, हाँ, प्रमोशनल कार्डर्स को देखते थे हम, लेकिन अगर मेरी कश्मीर में पोस्टिंग एक थी। बार थोड़ा सा इजी करेंगे, मतलब क्या, मैं एजुकेशन नहीं समझ पाया जी, क्या जी, मैं चीज? बताती हूँ, आर्मी से रिलेटेड पहले मैं बताती हूँ। अ, आर्मी में अलग-अलग सर्विसेज़ होती हैं या फाइटिंग आर्म्स होते हैं। आई वाज़ पार्ट ऑफ सर्विस। सर्विस में मेरा जो कोर था, कोर बोलते हैं, तो आर्मी एजुकेशनल कोर था। लेकिन जब आप ट्रेन्ड होते हो मिलिट्री में, तो आप ट्रेन्ड इसलिए नहीं होते कि आप सप्लाई कोर के लिए हो या सर्विस कोर के लिए हो। आप ट्रेन्ड होते हो कि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़े, आप खड़े होके बाकी सोल्जर्स की तरह अपनी ज़िम्मेवारी पूरी कर सको। लेकिन जहाँ पीस एरिया, आर्मी में 2 बाइफरकेशंस गिनी जाती हैं, पीस एरिया, फील्ड एरिया। पीस एरिया होता है जैसे सिटी स्टेशंस में पोस्टिंग हो गई, सेंटर्स में पोस्टिंग हो गई, एकेडमीज़ में पोस्टिंग हो गई, तो वो पीस एरियाज़ गिने जाते हैं। फील्ड एरिया जैसे कश्मीर हो गया या कोई ऐसे ऑपरेशनल सिचुएशन है। तो पीस एरियाज़ में जब मेरी पोस्टिंग थी, व्हिच इंक्लूडेड इंडियन मिलिट्री एकेडमी या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर। सो उन पीस एरियाज़ में जितने स्कूल होते थे, ओके। उस अ, आर्मी स्कूल्स ओनली? आर्मी स्कूल भी होते थे, केंद्रीय विद्यालय होते थे, ओके। और रेजिमेंटल स्कूल्स होते थे, फॉर्मेशन स्कूल्स होते थे।
वो मेरे पास होते थे एकेडमिक्स के लिए नहीं, ओके टू सपोर्ट द प्रिंसिपल्स। ओके तो तो जो आप बोल रहे फॉर हैं सिचुएशंस जो नॉट सिचुएशंस, टू गिव, सपोज उनको कुछ इंफ्रा में सपोर्ट चाहिए, अच्छा सपोज उनको कुछ एडिशनल मैन पावर हायर करनी है, या किसी और चीज में स्कूल को और अपग्रेड करना है, किसी इवेंट को प्लान करना है, ओके तो उस चीज के लिए वो प्रिंसिपल्स मुझे रिपोर्ट करते थे। तो जो आप सीईओ बोल रहे हैं, मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार से थी कि एज अ स्टूडेंट आई वेंट इनटू द स्काई, फिर अब मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वही आपकी बात, कि मैं हर बार 4 लोग जोड़ लेती हूँ अपने साथ, और बहुत लोग जुड़े हैं मेरे साथ। मैं ज़िंदगियों में परिवर्तन लाने के स्थान पर खड़ा होना चाहती हूँ, और वही मैं करती हूँ। सो वापस आते हुए हम उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो वहाँ पर एक ये होता था, दूसरा एज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग एन ऑफिसर विद एजुकेशनल कोर वाज़, जो आपके अंडर जो लोअर रैंक्स हैं या जो भी हैं, उनके प्रमोशनल कार्ड्स होते हैं। आर्मी में भी कोर्सेज़ कार्ड्स होते हैं जिससे आप प्रमोशन ले सकें या हम उनकी प्रमोशन को कंसीडर कर सकें। सो वो सब हमारे अंडर आता था। अ, शिक्षा नाम जुड़ा था। बाहर आने के बाद सच में नहीं पता था मुझे क्या करना है। हम्म मैंने कहीं स्कूल रेज़ करने में मदद की, कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर में काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया शिलांग में, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए, बिकॉज़ बीइंग इन आर्मी यू ऑटोमैटिकली बिकम अ लीडर, अ स्पीकर। सो बट ये सब जो भी मैंने किया फ्री ऑफ कॉस्ट किया। जी ऑल इंडिया रेडियो में शायद 600-700 रुपए मिलते थे एक सेशन के, पर वो पैसे की बात नहीं थी, वो उनका कंपल्सरी था, वो गवर्नमेंट बॉडी थी। लेकिन धीरे-धीरे चलते-चलते मुझे एक रास्ता मिला, मुझे लगा मैं क्यों ना डॉक्टरेट करूँ। हम्म तो मैंने नेहरू, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे। मैंने अपीयर किया, मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। क्यों? क्योंकि जो 10 साल का गैप है, आप कोप अप कर पाओगे या नहीं? हम्म मैंने कहा मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी, मैं आऊँगी तो कोप अप करके दिखा दूँगी। आपको लगता है कि ये 10 साल के गैप ने मुझे रिडंडेंट बना दिया है बीइंग एन हम्म ऑफिसर इन विद आर्मी, तो आप बेशक से मुझे ना सेलेक्ट करें। हम्म मेरी कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज़ थी, आई वाज़ सिलेक्टेड। तो मैंने स्कॉलरशिप पे पीएचडी किया, तो मैं दोबारा से स्टूडेंट बनी, हम्म एंड देन आई बिकेम एन एजुकेशनिस्ट। वहाँ से मुझे रास्ता मिला, नेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो एनसीईआरटी का फैक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट में। ओके नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, जो शिलांग के रास्ते में एक जगह है, उमियाम। वहाँ पर मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाने लगा, मैंने नागालैंड बोर्ड का रिव्यू किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, हम्म बस चल रहा था सब कुछ। लाइक आई वाज़ ऑन एन एस्केलेटर, क्योंकि ऊपर से गिरे थे, कहीं तो उतरना था। पैराशूट ने लैंड किया, शिक्षा के विभाग में धीरे-धीरे चल रहे थे, लेक्चर्स देना हुआ। फिर मुझे इनवाइट किया किसी ने कि आप, आर्मी स्कूल है शिलांग में, आप इसको लुक आफ्टर करो। तो थोड़ा-सा हिच था कि यही आर्मी स्कूल तो मैं देखा करती थी, हम्म तो एक आर्मी स्कूल को कैसे लुक आफ्टर करूँ? रिलेशन अलग थी, जॉइन कर लिया, और ऐसे मैं प्रिंसिपल बन गई। उसके बाद पोस्टिंग हस्बैंड की इंदौर में हुई, तो इंदौर एक स्कूल जॉइन किया। फिर इंदौर में एक ये सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन, इन्होंने मुझे बुलाया। सो आई वर्क विद देम, इंदौर, सिंगापुर, मलेशिया, एंड so you went there or no, you no, were working from I went there. I was okay working in Indore also. I okay worked with them. I worked for almost 10 years with them. okay And फिर wonderful organization, no advertising, but no I literally they are really good enjoyed. 10 साल आर्मी में और लगभग 10 साल यहाँ पर, it was great being with them. And फिर मुझे इंडिया आना था, क्योंकि कोविड में परिवार 2 साल तक एक दूसरे से नहीं मिल पाया था। आधा हम लोग, 2 लोग उधर थे और 2 इंडिया में। एक डर भी था, किसी को कुछ हो गया तो हम शायद देख भी नहीं पाएँगे। हम्म तो ज़िंदगी के मायने खुद मुझसे सवाल करने लगे कि जो आपको करना है आप अपने परिवार के साथ रह के करो, आपका परिवार भी आपको माँगता है, चाहिए उनको आपके साथ की ज़रूरत है। I came to India. I worked with this organization in Ghaziabad. I have changed, switched to another organization now. Uh, I'm director principal with them, enjoying. यहाँ ये नया सिस्टम है, लेकिन मुझे ये है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, अब मैं ब्रांड बनाऊँगी, हम्म और बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि जो मेरी निष्ठा है और जो फायर है,
वो संस्था और मैं, हम दोनों ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां अभी तक बाकी लोगों के साथ पहुंचे हैं। तो यानी ये आर्मी वाला एस्पेक्ट आप यहाँ रेप्लिकेट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था लीडरशिप वाला कि आप कैसे इसको। एक सेकंड इस पे हम आते जी, हैं। इससे जी। पहले बाइफरकेट करें कि यू वेंट टू आर्मी, राइट? 10 इयर्स आपने वहाँ स्पेंड करा। उसके बाद यू वेंट टू दिस थोड़ा फ्रीलांसिंग हम कह सकते हैं। तो ये कितने टाइम चला था आपका जनरल ये पीरियड? ये भी चला थोड़ा-सा, 2-3 साल चला ये भी। फिर उसके बाद देन यू बिकम प्रिंसिपल एट दैट स्कूल जो आपने करेक्ट, बोला, करेक्ट। एंड देन आज आप प्रिंसिपल डायरेक्टर। ये आपकी एजुकेशनल जी, जर्नी। जी। प्लीज अब आप तो अब क्योंकि हम शिक्षा के विभाग में हैं और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफ़ेशन है मेडिकल के साथ-साथ एजुकेशन। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में अभी इसको अपना असली स्थान पर वापस आना है। जो शिक्षा का स्थान हमारे प्राचीन काल में होता था, वो शिक्षा का स्थान, शिक्षकों का स्थान, शिक्षण संस्थाओं का स्थान ज़्यादातर डिग्रीज़ और डिप्लोमाज़ इकट्ठे करने में रह गया है। बट वो स्थान भी हम वापस लाएँगे और उसके साथ-साथ एक चीज़ है, जो शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करते हैं, मैं स्कूल की स्पेशली बात करती हूँ, तो रिक्वायरमेंट है ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, चाहे कोई भी बोर्ड हो। मैंने 4-5 बोर्ड्स में काम कर लिया है, नेशनल और इंटरनेशनल बोर्ड्स में। किसी भी बोर्ड में अगर हम देखें तो एक चीज़ जो हर पेरेंट और हर स्कूल यूज़ करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी गहराई तक जाने की आवश्यकता है। हम्म। होलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या? क्लास में अच्छे नंबर ले आना, बोर्ड में अच्छे नंबर ले आना, अ, अच्छे से कपड़े पहन लेना, अच्छी फ्लुएंट भाषा में बात कर लेना या कुछ और? जी। मेरे हिसाब से बहुत कुछ और है इसके मायने। और इसके मायने शुरू कहाँ से होते हैं? हम कोशिश करते हैं हम लेक्चर दे दें, हम सिखा दें, नहीं। इसके मायने शुरू होते हैं, हम खुद क्या हैं? इसके मायने शुरू होते हैं सबसे पहले उस लीडर से जो शिक्षण संस्थान का लीडर है। उसके बाद इसके मायने आते हैं जो शिक्षक हैं उनके ऊपर। सो फर्स्ट वी नीड टू बी एंड लिव व्हाट वी वांट टू गिव इट टू आवर स्टूडेंट्स। हाउ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म देम, फर्स्ट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स। यहाँ भी थोड़ी-सी बातें आती हैं अनलर्न और रीलर्न की। हम्म। अनलर्न का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक कर दो, एकदम रीफॉर्मेट कर दो अपने आप को। अनलर्न का मतलब है कि जो आपके पास है उसी को करके मॉडिफाई करके अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ तक लेके जाओ, जो मॉडर्न एरा में एक्सपेक्टेड है, जो प्राचीन काल में आपका वैल्यू सिस्टम था और जो आइडियली हम किताबों में पढ़ते हैं और सामने वाले को सिखाने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपने अंदर लेके आए और जब वो विश्वास वो विश्वास, वो भक्ति और वो समर्पण हम्म। हमारे अंदर आ जाएगा, तो बच्चे किताबों से किताबें सीख लेंगे, लेकिन बाकी कुछ हमें देख के सीखेंगे। हम्म। और यहाँ मैं एक छोटी-सी चीज़ बिना आपके सवाल किए एड्रेस करना चाहूँगी। पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, मैं भी पेरेंट हूँ। मेरा बच्चा कोई भी स्कूल से कोई कंसर्न या कोई बात लेके आता है जिससे वो खुश नहीं है, मैं उसको पहले ये कहती हूँ, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, कि आप अपने शिक्षण संस्थान के प्रति भक्ति अगर रखोगे नहीं, तो आप वहाँ से जो लेने गए हो लेके नहीं आ पाओगे। हम्म। बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बहुत राइटफुली, मेरे बच्चे को प्राइज़ क्यों नहीं मिला? हम ये नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं चाहते। आप सबसे निवेदन है कि जिस शिक्षण संस्थान को आपने विश्वास किया है जिसके ऊपर कि आपके बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन मिले, वो वहाँ क्वालिफाइड लोग हैं, ट्रेन्ड लोग हैं। आप उस शिक्षण संस्थान को अपना काम करने दें। आप अगर शिक्षण संस्थान होते तो आपका बच्चा घर में पढ़ रहा होता। आप विश्वास करें और उस विश्वास के साथ उसको आगे बढ़ने दें। जहाँ तक ग्रूमिंग का सवाल है उसे हम घर में करें। आई एम श्योर इफ यू लिव द वैल्यूज़ विल कम इन योर चाइल्ड। इसका मैं 2 एस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता हूँ कि बच्चा एक बंदर है। बंदर इन द सेंस जो आप नकल कर रहे हो ना वो रिपीट करता है। अब आपने घर पे गाली दी या आपने कुछ अच्छा करा, बच्चा वो स्कूल में रिपीट करेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बंधुओं के साथ। सेम वही चीज़ क्या है, पेरेंट को इम्प्रोवाइज़ करने की नीड है
और इसके लिए जो आपने होलिस्टिक की बात करी, उसके पैमाना एक मैं क्या भी मानता हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम सोचते हैं कि हम स्किल्स और ये सब सिखा दें, बट होलिस्टिक मीन्स 360 इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। वंडरफुल। हम क्या सोचते हैं कि एक पेरेंट है, पेरेंट ने फीस दिया लेट से 5,000 रुपया, 5,000 रुपये महीना उसने फीस दिया, वो अपना बच्चा सौंप के आपके पास 6 घंटे चला गया, इस 6 घंटे में आपको खाना भी खिलाना है, बच्चे को प्रेयर भी कराना है, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर, राइट? उसके बाद पेरेंट की एक्सपेक्टेशन है, मैंने 5,000 दिया, मैंने 6 घंटा बच्चा छोड़ा, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, भाई साहब अब बताओ तुमने क्या करा? नाउ द पॉइंट इज कि वो बच्चा आपका प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को ग्रूम करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करने के लिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, एंड देन आपने कब उसको रिफ्लेक्ट बैक करा या रिफ्लेक्ट करा कि मेरे बच्चे ने क्या क्या सीखा और मुझे क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, क्या इन्वॉल्वमेंट की नीड है, और वो फायरिंग करने आ जाते हैं स्कूल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जब एजुकेशन सिस्टम की बात है, मेरे को लगता है 90% इज पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, राइटफुली माइलस्टोन्स अचीव करता हुआ देखते हैं बच्चे को, तो वो हमेशा संस्था के साथ खड़े ही होंगे, वो पीछे नहीं होंगे कभी भी। एम आई राइट और रॉन्ग इन दिस केस? जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल 100% सही कहा। इसमें मैं 2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। एक चीज़ तो ये कि आप जो सिखा रहे हो, आर यू लिविंग इट? हम्म। दैट इज़ वन। सेकंड इज़, जिस परिवर्तन का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थान का एक अलग सम्मान होता था हमारे प्राचीन काल में। मॉडर्न एरा में हम कहते हैं लाइफ एंड द एजुकेशन हैज़ बिकम स्टूडेंट सेंट्रिक। हम्म। बच्चे के चारों तरफ घूमता है, बच्चे को कोई कुछ कह नहीं सकता। और परिवर्तन हम चाहते हैं, हम कहना भी नहीं चाहते। हम बच्चों को एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट को लेकर चलते हुए ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो शिक्षण संस्थान ने आपके बच्चे को देना है, उसके लिए आप भेज रहे हो क्योंकि वो आप नहीं दे सकते, नंबर 1। जो वैल्यूज़ शिक्षण संस्थान ने आपके बच्चे को देने हैं, जो आप भी दे सकते हो, नहीं, आपको जीना है उसको। क्योंकि वो किताब से पढ़ के नहीं सीखेगा, वो आपको देख के सीखेगा। किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला आइडियल उनके पेरेंट्स होते हैं। हम्म। एक और बात है जो इस दूरी को और बढ़ाती है, वो ये है कि क्योंकि शिक्षण संस्थान और शिक्षक का सम्मान एक बहुत बड़ा सवाल है मॉडर्न एरा में, तो पेरेंट्स जिस तरह से आपके विद्यालय और आपके शिक्षकों के बारे में घर पे बात करते हैं, वो बच्चा जाने अनजाने में वही इमेज उन शिक्षकों की और उस संस्थान की बनाता है। हम्म। क्या हैं आपके टीचर्स? मुझे याद आता है एक इंसिडेंट, इंदौर का इंसिडेंट है। मेरी डॉटर, स्कूल का नाम नहीं लूँगी, बड़ी बेटी, शी वाज़ इन दैट स्कूल। तो मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे थे और एक बच्चे ने कहा कि सर ज़रा मैं जाके आ रहा हूँ। तो बच्चे ने, टीचर ने बोला, कहाँ जा रहे हो? और वो जवाब मेरी बेटी ने आके मुझे बताया, इट वाज़ सच अ शॉकिंग। वो पहला इंसिडेंट नहीं था। बहुत लोग, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत पेरेंट्स भी इसको जवाब इस तरह से, इस तरह की भावनाएँ बच्चों में डालते हैं। उसने कहा, "सर, आपकी तनख्वाह पे करने जा रहा हूँ।" लिटरली। लिटरली। ये बात अगर पेरेंट बच्चे को कर रहा है कि आपके शिक्षक हैं क्या? आपका स्कूल है क्या? आप फीस देते हो, उससे वो चलता है। दुनिया ही ऐसे चल रही है, आप मुझे कुछ दे रहे हो, मैं इनको कुछ दे रही हूँ, ऐसे ही तो दुनिया चल रही है। हम्म। लेकिन अगर हम एक शिक्षक के बारे में अपने बच्चे से या अपने बच्चे के सामने ये बात करते हैं, तो वो बच्चा सम्मान नहीं करेगा शिक्षक का। और जब वो शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा, तो वो शिक्षक से लेने की इच्छा, मतलब वो भावना ही नहीं आएगी कि मैं इनकी शब्दों को कोई वैल्यू दूँ। तो जो वो सीखने जाएगा, वो नहीं सीखेगा। हम्म। जिस जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने विश्वास किया है उस संस्था पे, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। हाँ, अगर ये सोच रहे हो कि ये बड़ा ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम से सर्टिफ़िकेट आ जाएगा, शायद आ जाएगा। लेकिन एक श्रद्धा, जब एक, अगर हम शिक्षा के सही मायने समझना चाहते हैं, तो हम प्राचीन काल के गुरु शिष्य परंपरा को समझना होगा हमें। और तभी हमारे बच्चे सही मायने में शिक्षा ले पाएँगे, शिक्षित हो पाएँगे। इफ वी call it holistic development, then only holistic development will come. Otherwise, these days we have become wonderful speakers. हर आदमी को बहुत अच्छा बोलना आता है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, अच्छी भावनाओं का इस्तेमाल करना आता है। अ, मेरे एक चांसलर थे एक यूनिवर्सिटी के, मुझे याद आया, वो कहते थे, पुराने ज़माने में आप बात करते थे तो आपको पता चल जाता था कि ये आदमी गलत आदमी है, ये आदमी सही आदमी है। आज नहीं पता कर सकते हम्म। क्योंकि हर आदमी को अच्छे से बात करना आता है। फिल्टर्स बहुत लगे हुए हैं। फ़िल्टर्स बहुत लगे हैं। यू सेड इट राइट।
फ़ोन में फ़िल्टर आ गया और लाइफ़ में भी फ़िल्टर आ गए हैं। लाइफ में ज़्यादा है, तो वो रेप्लिकेट फ़ोन में हो गया। सो वेरी ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट एंड वो फ़िल्टर्स हम नहीं पहचान पाते और हम सब ज्ञाता हैं, सब शिक्षक हैं, सब विद्वान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। एक एक स्टेटमेंट है, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, हुँ, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट कंफर्टेबल टाइम, कंफर्टेबल टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट टफ टाइम। ये वही साइकिल ये है। साइकिल है। तो हम स्ट्रॉन्ग अगर बन गए अपने अपने प्रॉब्लम से स्ट्रगल करके, तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आने दें। ये लिटरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो वो मैं बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इसको मैं 3 शब्दों में बोलता हूँ। फर्स्ट जो आपने पहली प्रॉब्लम बताई दैट इज़ आई कॉल इट एज़ कंज्यूमरिज़्म। तो जो कह रहा है ना मैं तनख्वाह देने जा रहा हूँ, तो उस सिस्टम हमने कंज्यूमर सेंट्रिक मतलब कस्टमर केयर सेंट्रिक हो गया है। राइट, पहला ये। दूसरा अबंडेंस एंड स्कार्सिटी। तो जहाँ पे अबंडेंस वाला केस आया, वहाँ पे मतलब मैं लिटरली अपने सामने देखता हूँ, मतलब बच्चे को ये नहीं खिलाना, बच्चे को ये मत खिलाओ, दलिया नहीं ऐसा देना, इसमें दूध डालो, लैक्टोस है, ये है, फलाना ढिमकाना। इतनी सारी चीज़ें एक पेरेंट जो जिसके पास पैसा है वो ऐसा करता है। और जो स्कार्सिटी में एक लेबर का बच्चा पल रहा है, मिट्टी में पलता है, उतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर भी ऑलमोस्ट होगी और वो ईंटें वगैरह जो भी काम वो करेगा, लेट्स आई विश कि वो अच्छा कुछ करे। तो ऐसे ही कुछ वो काम करेगा और उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। तो अबंडेंस ने ज़्यादा नुकसान करा है, ऐसा मेरे को पर्सनली फ़ील होता है। डू यू फ़ील इट राइट आल्सो? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। राइट, ओके। सो मैं इसको एक आप इजाज़त दें तो एक छोटी-सी कहानी में प्लीज़, कहना प्लीज़। चाहूँगी कि एक बहुत आइडियल मदर है और वो अपने बच्चे को अच्छी वैल्यूज़ सिखाती है। आपको इस कहानी से उसका भी आंसर मिलेगा जो हम कहते हैं कि हम बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? तो वो अच्छी बातें सिखाती है, तो एक इंसेक्ट अ, एक शेल में से कुछ निकल रहा है, तो वो बच्चा देखता है कि स्ट्रगल कर रहा है कोई चीज़, तो उसकी शेल को तोड़ देता है। तो वो जो भी इंसेक्ट उसमें से निकलता है, फ्लटर करता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती, फ्लटर करके मर जाता है। बच्चा परेशान होता है, छोटा बच्चा है। मैं बहुत बार ये कहानी का ज़िक्र कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जितना जल्दी समझें, उतना जल्दी हम समाज को सही प्रारूप दे पाएँगे आने वाले समय में। तो वो बच्चा मदर के पास जाता है, कहता है कि मैंने ऐसा किया, आपने अच्छी बात सिखाई थी, मैंने तो उसकी मदद की, लेकिन वो क्यों मर गया? तो मदर कहती है, "बेटा, जो ये आपने किया, आपने मदद तो की, लेकिन जो उसका स्ट्रगल था, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग थी, उसकी लाइफ के प्रति स्ट्रेंथ डेवलप हो रही थी, वो आपने नहीं होने दी आप वो मदद करके। उससे क्या हुआ, वो ज़िंदगी की उड़ान लेने के काबिल नहीं बन पाया, क्योंकि आपकी मदद उसकी कमज़ोरी बन गई हुँ, और उसने स्ट्रगल किया और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? ये मत खाओ, ऐसे मत पढ़ो, स्कूल में ऐसे मत पढ़ाओ, बैग 2 किलो ज़्यादा हो गया, होमवर्क 2 पेजेज़ ज़्यादा हो गया, आज होमवर्क नहीं मिला। हम कितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को, जबकि हम उस सिस्टम को खुद नहीं चलाने के काबिल हैं। हुँ, तो आज स्कूल में हम कंट्रोल कर रहे हैं, कॉलेज में हमारा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ा और कंट्रोल कम हो जाता है। मेरे बच्चे के अंदर वो रॉबस्टनेस, वो स्ट्रगल को खुद हैंडल करने की काबिलियत तो आई नहीं, हुँ, तो फिर क्या होगा? कल जब रियल लाइफ़ का स्ट्रगल आएगा तो पेरेंट्स नहीं खड़े होंगे, वो बच्चा ही नहीं खड़े होने देगा कि मेरा इंसल्ट होगा, आप मत आओ। लेकिन वो छुप-छुप के उस स्ट्रगल को अपने अंदर दबाता रहेगा, वो काबिलियत उसके अंदर हमने ही नहीं डेवलप होने दी। हुँ, और एक समय ऐसा आ सकता है, आता है, कुछ बच्चों में, कुछ लोगों में हम ऐसा देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के उस गहने को सरेंडर कर देते हैं, ज़िंदगी को सरेंडर कर देते हैं, जो खाली हमारी नहीं है, हमारे परिवार की भी है। क्योंकि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमें कमज़ोर बनाया जाता जा रहा है और माफ़ कीजिएगा, इस कमज़ोरी में, इस सब चीज़ में शिक्षा का कोई योगदान नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस का भी कोई योगदान नहीं है, पर आप एक तरफ एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बच्चा आसमान छुए, दूसरी तरफ रखते हो कि कोई हेलीकॉप्टर आके आसमान में ले हुँ, जाए उसको। तो उसकी मसल्स तो मेंटल मसल बनी नहीं। हुँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको रोबस्ट होने दें। बहुत लिटरली एक बहुत नीडेड एस्पेक्ट है। बहुत नीडेड एस्पेक्ट है, जितना जल्दी हम समझें, मैं बहुत लेक्चर्स में इसको बोल चुकी हूँ बहुत बार। अ,
बहुत बार कई लोगों ने सवाल किया जब मैंने मोटिवेशनल लीडरशिप लेक्चर्स दिए कि उस जगह एक्स बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आप एजुकेशनिस्ट क्या लीडरशिप लेक्चर दे रहे हैं? तो मैंने उन्हें ये बताया कि यही परेशानी है कि हम सिर्फ एजुकेशनिस्ट की तरफ देखते हैं रॉबस्टनेस और लीडरशिप और डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चे को पेरेंट ही कहेगा कि नहीं, ये होमवर्क मत करो, टीचर ने एक्स्ट्रा दे दिया है, आई विल सॉर्ट हर आउट टुमारो। तो वो जो समाज से लड़ने की शक्ति है, आप उसके अंदर आने ही नहीं दे रहे। हुँ, कल आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो उसकी शक्ति नहीं होगी, वो हारेगा। हार के या तो वो अपनी ज़िंदगी से सवाल करेगा या ज़िंदगी के लिए सवाल बन जाएगा। राइट। इसके लिए मतलब अभी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वी आर इन 21st सेंचुरी और मैं भी एक यूएस के साथ कॉल पे था। यूएस एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो मैंने खुद उनको बोला कि भाई एक बात सुनो, यूएस से शिफ्ट होके वेस्ट से शिफ्ट होके पावर ईस्ट में आ रही है, राइट? और चाइना हमने देख ही लिया कि चाइना दिख नहीं रहा है बट अभी वो नंबर 1 पे आ चुका है अकॉर्डिंग टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड व्हाटएवर मैंने जब स्टडी करा। तो चाइना, ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया यहाँ से यहाँ पे पावर आ गई है। तो यहाँ पे भी जो मेजर पावर आई फील इज़ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। कंज़्यूमर यहाँ पे अच्छा है, नॉलेज यहाँ अच्छी है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी जो और इसको ब्यूटीफुल बनाता है। अब मेरा पॉइंट क्या है कि जो इंडिया को अगर अब विश्व गुरु या ये सब हम देखते हैं, तो उसके लिए आईकेएस जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, दैट इज़ समथिंग जो कि प्रमोट होना चाहिए, राइट? उसके केस में गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंग। इस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे प्रोग्रेसिव टाइम है, सभी स्टेक होल्डर अपने प्रोग्रेसिव उस पे स्टेज पे हैं। थोड़ा स्कूल और थोड़ा-सा पेरेंट अगर एक अलाइनमेंट में आ जाए, सिंगल पेज पे आ जाए, तो एवरीथिंग इज़ एट इट गुड पेस, राइट? आईकेएस के हिसाब से मैं कल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, शरद पूर्णिमा थी कल, राइट? तो मैं आई गेस साढ़े 9 बजे के अराउंड में सो गया। मेरी अपने आप आँख खुल जाएगी 12:30 1 बजे, इस कारण से मैं सो गया। मेरी 1:32 पे आँख खुली, मैं कपड़े चेंज करे और मैं बाहर राउंड लगाने चला गया। मुझे एक पर्सन नहीं दिखा। एक सिंगल पर्सन नाइदर इन पार्क, नाइदर ऑन आपका छत पे, कहीं पे नहीं दिखा। एंड शरद पूर्णिमा एक बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल इंडिया के केस में है। वी आर लूजिंग आवर कल्चर। इन शॉर्ट वी आर लूजिंग आवर कल्चर। क्या हम जब खुद जो हम हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हम हैं, अगर हम वो ही नहीं रहेंगे तो क्या आपको लगता है वो डेवलपमेंट आ पाएगी? आप बिल्कुल सारी बातें मेरे दिल की कर रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। देखिए आज के समाज में शिक्षित होने का मतलब लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं कि मैं ये पुरानी दकियानूसी बातों को नहीं मानता। देन दे से दे आर नॉट साइंटिफिक। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि विज्ञान वो नहीं है जो आज हमें दिखता है। जैसे कि विज्ञान वो नहीं था जो 20-30 साल पहले दिखता था। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो ये कहा जाता था एक फ़ोन आने वाला है जिसमें आप कहीं भी चलते-फिरते बात कर लोगे। तो एक बड़ी अजीब-सी बात लगती थी। हम सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं और जितने गैजेट्स और गिज़्मो की बात करते हैं। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि विज्ञान डेवलप हो रहा है। तो जिन चीज़ों को जिस संस्कृति में हम हमारा ओरिजिन हुआ है और हम कह रहे हैं कि अगर हम हमारी जो संस्कृति है हम वो ही नहीं मानेंगे तो हम नहीं रहेंगे तो हमारा सम्मान क्या होगा? और दूसरी साइड आपने ये कहा कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में सामने आ रहा है। इन दोनों के साथ में बहुत गहराई से हम देखें तो समन्वय है। कैसे है समन्वय? ऐसा नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं या जो आज हमारा स्थान विश्व में देखा जा रहा है वो हमारे पास कल नहीं था। लेकिन हमने उस सम्मान को और उस ज्ञान को लेके कभी विश्व में अपना आत्मविश्वास दिखाया ही नहीं। मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बार-बार मैं लेक्चर्स का उल्लेख कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मौके हैं जिस पर मैं बात करती हूँ। उसमें मैं ये कहती हूँ कि हम बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और ग्लोबलाइज़ेशन की बात करते हैं। आप थोड़ा हैरान होंगे मेरा स्टेटमेंट सुन के। मैं उसमें कहती हूँ कि हमारे बच्चे जो ये स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स, इस काबिल बने, कल इस स्थान पर खड़े हों, कल उस स्थान पर खड़े हों, जहाँ विश्व खड़ा होके कह सके कि हम आपके साथ खड़े होने के लायक हैं। नोट किया जाए, हम आपके साथ खड़े होने के लायक नहीं हैं। विश्व हमारे लिए कह सके कि हम भारतीय लोगों के सामने खड़े होने लायक हैं। अब ये ऐसा क्या आपको लगता है अभी नहीं है? अभी भी मैं बाहर बहुत समय रह के आई हूँ।
और अभी इंटरेक्शन हम करते हैं, भारतीय लोग चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हों या किसी भी और क्षेत्र के हों, जो इनका सम्मान है, जो इंग्लिश की एक्सपर्टीज़ भारतीयों की है, हुँ, उन लोगों की नहीं है जिनके देश की भाषा अंग्रेज़ी है। लेकिन कमी क्या है? कमी है आत्मविश्वास में, और आत्मविश्वास में कमी है, इसीलिए मैं अपनी हर चीज़ को ये समझता हूँ कि ये तो छोटी है, जो दूसरी हुँ, दिख रही है, जो विश्व में दिख रही है, जो विदेशों में दिख रही है, जो वेस्ट में दिख रही है, वो बड़ी है। जब तक मैं उसका जैसा बन के दिखाऊँगा तो मैं काबिल गिना जाऊँगा। मेरे देश की परंपरा छोटी है, मेरे देश की चीज़ें साइंटिफिक नहीं है। शायद कल आप खुद खड़े होके इसी बात का उल्लेख करोगे। मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, अ, इजाज़त है तो मैं बता सकती हूँ। जी, एक प्राणायाम को अब धीरे-धीरे विश्व ने माना है कोविड के बाद में कि प्राणायाम एक ऐसी प्रक्रिया है, प्राण कहते हैं वायु को, जी, व्यायाम शरीर के आयाम को व्यायाम कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं प्राणवायु। प्राण वायु को संचालित करना अपने शरीर में, और उसको उस हिसाब से अपने शरीर को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाना। अब हम मैं बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ये बताती हूँ, लेकिन कई जगह बीच में रिलिजन भी होता है तो हम कहते हैं भाई इसमें कुछ रिलिजन की बात नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है, सबके लिए अच्छी है। भ्रामरी की बात करते हैं, तो दिस लेडी हु इज आंसरिंग दिस इज, आई गेस रणवीर पॉडकास्ट में देखा, मूवर्स वाली लेडी मेरे जो पास तो क्लिप आया था, डॉक्टर पूरा श्वेता, पॉडकास्ट मुझे अभी भी देखना है। जो थोड़े शी सेज द व्हाइट से गामा बाल, गामा हाँ, हाँ, रेज वही, क्रिएट हो जाती हैं। डॉक्टर श्वेता। अब जब साइंटिफिक बात आ रही है तो हम विश्वास करेंगे, और जब मेरे मेरे प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो कि वैज्ञानिक होते थे उनकी बात है तो हम कहेंगे ये दकियानूसी है, ये छोटी बात है। ओम की आवाज, यज्ञ का हवन, हवन कुंड का जो भी प्रक्रिया है वो, ये सब साइंटिफिक है। आज मैं विश्वास करती हूँ, इसलिए शायद मेरे पास प्रूफ नहीं है, नहीं, पर मैं कल 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। हमने अपने बच्चों के साथ पूरा साइंटिफिक हवन किया। मतलब साइंटिफिक हवन में क्या है, आप बेसिक सिंपल एक लॉजिक समझते हैं। 3 स्टेट हैं, वाटर, लिक्विड, गैस। आप वाटर इनटेक कर लेते हैं, ठीक है? एयर, तो मतलब एयर के थ्रू हम इनटेक नहीं कर पाते। क्या बोला मैंने आपको? वाटर, क्या-क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉरी मैं जी, गलत बोल गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पानी के लिए लिक्विड हम ग्रहण कर रहे हैं। एयर के नाम पे हम जो वातावरण में जो आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वाली एयर है, वो हम कंज़्यूम करते हैं, राइट? तो जो अग्नि है, वो क्या करती है? फ्यूम क्रिएट करती है। उस फ्यूम से जो आपके अंदर इनटेक होता है, जो अग्नि जाती है, वो बहुत जल्दी काम करती है। तो एक एग्ज़ाम्पल क्या है, आप कहीं से भी अगर जा रहे हैं, तो छोंक लगाएँ अगर कुकर से या किसी कढ़ाई से, आपको बहुत जल्दी खुशबू आती है। तो अग्नि क्या काम करती है? वो फ्यूम और वो पार्टिकल्स छोटा क्रिएट करती है, जिससे जो चीज़ आपकी सॉलिड और लिक्विड के थ्रू प्रोसेस होनी थी, बल्कि एयर से और जल्दी हो जाती है, राइट? तो हमने हर एक चीज़ का प्रैक्टिकली एक्सपोज़र करा। हमने कहा लकड़ी लेते हैं, तो हमने कहा लकड़ी नहीं लेनी। आप जनरली जाएँगे किसी भी पूजा की दुकान पे, आपको लकड़ी मिलेगी, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपको लकड़ी नहीं लेनी। वो उसको बोलते हैं समिधा, जो अग्नि में इस्तेमाल होती है, उसे बोलते हैं समिधा। और समिधा क्या होती है? किसी भी पेड़ की सूखी लकड़ी। जनरल आप लकड़ी नहीं काटेंगे, राइट? तो अगर आप देखेंगे, एक सीरियल था कृष्ण जी वाला, तो वहाँ पे गुरुजी कहते हैं उनको, जब वो 64 कलाएँ सीखने गए हैं आपका उज्जैन में, तो उनको कहते हैं जाइए लकड़ी लेके आइए, जब वो सुदामा वाला चने वाला केस है। तो वो लकड़ी कौन-सी लेके आए, उन्होंने स्पेशल डिफाइन करा, जो सूखी लकड़ी या तो टूटी हुई हो या कुछ एस्पेक्ट उसका टूटने वाला हो। तो पहले आप समिधा यूज़ करते हैं, उसके बाद आप देसी गाय का, जो A2 घी का, अब यूज आजकल बहुत करते हैं। अच्छा एक डिबेट चल ही रहा है, A1 काऊ घी या A2 काऊ घी, तो A2 काऊ घी लेते हैं। उसके बाद आप उसमें लोबान डालते हैं, ऐसी चीज़ें डालते हैं। इवन दो इतना साइंटिफिक है ये, कि आपको लेट्स से कोई एक एक्स बीमारी है, गर्मियों की बात है, या ऐसे बोलते हैं आपका पित्त बढ़ गया है आयुर्वेद के केस में, तो आपको नीम का वो करवाएँगे, ठीक है? आपकी बॉडी को नॉर्मल न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो कंप्लीटली साइंटिफिक है, ये कमी हमारे अंदर है। मैं हमारे अंदर क्या कहना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर इन सेंस जो हमारे से पहली जनरेशन है, मैं उसकी कमी कहता हूँ, उन्होंने अलाइन नहीं करा। ठीक है, अंग्रेज आए, बहुत चीज़ें सिस्टम खराब हुआ, बट हमने रेजुवेनेट, जो रीलर्न और अनलर्न वाला केस है, वो हमने नहीं करा। ये हमारी प्रॉब्लम है, जो कि हमें ही ठीक करनी पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम है, हमें ठीक करनी है। कुछ हमें नहीं समझ में आता, विश्वास तो मत खोने दो। सबसे बड़ी बात है, एक एक मैंने इनपुट में कहा था कि अगर किसी भी स्थान पर विश्व में आपको सम्मान पाना है, तो अपना सम्मान और अपने स्थान का सम्मान बनाए रखें, आपका सम्मान अपने आप हो जाएगा। आप कभी भी किसी के जैसे बन के
आप प्रथम स्थान नहीं पा सकते, आप द्वितीय ही रहेंगे उसमें। हम्म, तो दोस्तों किसी के जैसे बनने का कोशिश मत करो, बहुत कुछ है हमारे पास, उसमें विश्वास रखो। जहाँ तक साइंस की बात है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाएँगी, अगर आप उस साइंस की भाषा में समझना चाहते हो जो आपको समझ में आती है। हम्म, अदरवाइज़ ये सब साइंस थी, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है। अगर इतनी साइंस ना होती तो तक्षशिला, नालंदा की लाइब्रेरी कई दिन तक जलती ना रहती। हम्म, लोगों ने मिटाने की कोशिश की और अब हम खुद को मिटा रहे हैं। अपने आप को साथ लेके चलें, अपने एग्जिस्टेंस पे विश्वास रखें। भारत विश्व गुरु के राह पर अग्रसर है, भारत विश्व गुरु था और है। मैं ये नहीं हमारी कहती कि हमारी होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगी अगर मैं इसको कंक्लूड कर पाऊँ, साइंस से हम टेंजिबिलिटी समझते हैं बस। जैसे अगर किसी से आप कहो कि एयर को डिफाइन करो, वो नहीं कर सकता, बट स्टिल देयर इज अ साइंस। तो हमारी आदत क्या होगी, साइंस के नाम पे हमें बस टेंजिबली कुछ दिखना चाहिए। तो वो भगवान जो है, अब भगवान टेंजिबली दिख ही नहीं सकता, राइट? तो विश्वास क्रिएट इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि साइंस के भी मायने हमने चेंज कर चेंज दिए कर बिल्कुल। दिया। बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना सम्मान और अपना विश्वास बनाए रखना है और वैल्यूज़ को जीना है और एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने से ज़्यादा कहीं और नहीं मिल सकता। हम्म, परिवेश बदल गए कोई बात नहीं, लेकिन अपने मानसिक स्थान के जो उस समय का अगर हम आवेश कहें या उस समय का समर्पण कहें वो ज़रूरी है। हम्म। एक आईकेएस की एक और लास्ट, मतलब वी आर अबाउट टू एंड दिस थिंग। तो आईकेएस से एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, एक तो मैं बिना एक्सपीरियंस करे मैं कुछ जनरली नहीं कहता। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेरा इंटरेस्ट था शुरू से, और एस्ट्रोलॉजी में भी प्लेनेट पे बहुत इंटरेस्ट था मेरा, कि वाई देर आर ओनली 9 प्लैनेट्स, क्यों 10 नहीं बनाए, क्यों 6 ही नहीं बनाए, क्यों दिन उसके साथ कनेक्टेड है। तो बहुत मेरा इंटरेस्ट था उसके अंदर। तो मैंने पाया आई एम अ जेमिनाई। तो जेमिनाई मीन्स मिथुन, और इसका जो प्लेनेटरी पॉइंट है वो होता है बुध। बुध ग्रह क्या है, बुद्धि, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों को वो दर्शाता है। तो मैं एक्चुअली क्या है, मैं हर एक पॉइंट को ना कनेक्ट करना चाह रहा था, और मैं देखना चाह रहा था क्या सच में जो कुंडली या जो भी चीज़ आई के जिसे हम कह रहे हैं, क्या वो सच में अनेबल करती है। तो मैंने हर एक पॉइंट को लगाया, मैंने कहा यस दिस इज द थिंग, यस दिस इज थिंग, बिल्कुल सही करेक्ट जा रहा है। कुछ नहीं समझ आया, मैंने वेट करा, मैंने कहा ठीक है लेट इट गो। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा ना, मुझे कोई आचार्य बनना इसके अंदर। बट लेकिन जब मैंने उसको कनेक्ट करा ना, आई फेल्ट कि दिस इज द रियल साइंस, क्योंकि उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया ये मेरे लिए साइंस है, राइट? तो अब इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था बेसिकली, कि एस्ट्रोलॉजी वर्कड फॉर मी, ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रिडिक्शन करना नहीं करना, दैट इज ऑल अप टू मी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि मैं अब इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहता। मेरे को सेल्फ एनालिसिस और उस अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो मैं वहां तक सीमित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जिस दिन ऐसा आता है ना कि आपके साथ अगले महीने क्या होगा, ये क्या होने वाला है, इस दिन ग्रह बदल गया, आज ये ऐसा है, तो वो एक ना ब्लफ क्रिएट करता है लाइफ में मेरे लिए। बाँधो मत अपने आप बांधता को। नहीं। तो मेरे का ये, जब मेरे को मेरा नेचर पता है, इसके बाद फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई करता हूँ कि डबल डाउन योर स्ट्रेंथ, सिंगल डाउन योर वीकनेस। तो उसने मुझे मेरी स्ट्रेंथ बताई, अब जब भी मैं उस पे काम करता हूँ, जो सारी वीकनेस है सब खत्म हो अपने जाती है। आप खत्म हो जाती तो है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय होलिस्टिक डेवलपमेंट। And you said it right. I would like to add to your analysis, astrological analysis. As I said, my father was a doctor. उन्होंने मेरी कुंडली का फलादेश बनाया था कई साल पहले। आई एम लिविंग इट। वो क्या बोलते वो हैं, वो उन्होंने पढ़ा था ऐसे। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वो या वो अच्छा मॉडर्न उनकी अलग डॉक्टर? अलग कहानी है। वो उन्होंने लाहौर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी पार्टीशन से पहले, और जब वो इंडिया शिफ्ट हुए तो लास्ट ईयर होने से पहले ही डिग्री देके उन्हें भेज दिया गया कि पार्टीशन हो रहा है, और हम ऑलमोस्ट 20-22 साल बाद हमारा जन्म हुआ। तो हमारा एक जनरेशन गैप था अपने पेरेंट्स के साथ में। ओके। एंड उनका शौक था, और वही शौक मेरे अंदर भी आया। मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, तो उन्होंने संस्कृत पढ़ी, उन्होंने होम्योपैथी पढ़ी इंडिया में आके, उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी अपने इंटरेस्ट से। तो वो ऐसे कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, लेकिन वो कुंडली बना लेते थे, फलादेश निकाल देते थे। मेरा जो फलादेश लिखा था, वो तब लिखा था, मैं आज उसको जी रही हूँ। फैक्ट। नो वर्ड्स। I mean it. And now that inherited thing has come into my sister. She has just completed Shastri in astrology. और ओके। जो भी वो प्रेडिक्शन करती हैं वो बिल्कुल सटीक हो रही हैं। हाँ, जो आपने कहा बांधने वाला, मैं भी नहीं बांधती हूँ अपने आप को। अपने मेन पॉइंट्स लेके अपनी ताकत लेके चलते रहो, और
sky is the limit. Sky is not the limit. राइट। तो लास्ट एक कंक्लूड कीजिए इसको कि 4 कीवर्ड से करें, आर्मी, आर्मी एजुकेशन, स्कूल होलिस्टिक एजुकेशन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। एक कोई वन लाइनर इसको कंक्लूजन दीजिए प्लीज। इनका वन लाइनर एक ही है, कीप द सोल्जर अवेक इन यू to win all the battles of your life, whether the battle is to get good education, whether the battle is to become a good entrepreneur, or whether the battle is to stand tall on global arena. क्योंकि सोल्जर सिर्फ जीत के वापस आता है और हारने का स्कोप उसके पास होता नहीं है, क्योंकि अगर सोल्जर हारता है तो आप जानते हैं क्या होता है। तो इसीलिए जब हम आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं तो हम ये ट्रेनिंग लेते हैं दैट इट इज सक्सेस एंड सक्सेस एंड सक्सेस। सो आत्मविश्वास एंड this soldier in you will take care of you even in the time of difficulty. You will win over everything and the world tomorrow. अमेजिंग। तो एक साथ बोलते हैं जय हिंद ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 1 2 3 जय हिंद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।